السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کا اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت साउंड ऑपरेटर مصطفیٰ बख्शा को अपना ध्यान दीजिए, आवाज बढ़ाइए। और وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے وہ دلہن سی اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے وہ دلہن سی اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت
لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے جس کے کرم پر ہم ناز کرتے ہیں۔ قابل صدر احترام علماء اکرام اور معزز سامعین اکرام اور میرے مسلمان ماؤں اور بہنوں اور امت مسلمہ کی غیور بیٹیوں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پورے انسانیت پر ضلالت و جہالت، شرک و کفر کی سیاہ چادر لپٹی ہوئی تھی، فضائے کائنات پر نفرت و عداوت کی تاریخ گھٹائے چھائی ہوئی تھی، ہر طرف عداوت و دشمنی کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کا جان لے لینا سرے سے کوئی جرم نہیں رہ گیا تھا۔ بھائی چارگی اور اخوت و محبت، خوبصورت و سنہرے الفاظ و حروف معاشرے سے بالکل غائب ہو چکے تھے۔ گویا یوں کہا جائے کہ انسانی قلب وہی الحجارت او اشد قسوۃ مصداق بن چکا تھا، اور قرآن شریف کا یہ الفاظ ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، ان پر پورے صادق آ رہے تھے، اور پورا معاشرہ، پوری انسانیت بلکہ پوری دنیا اب حیوانیت و درندگی، تباہی اور بربادی کی آخری کنارہ تک پہنچ چکی تھی۔ کمزوروں پر ظلم ستم میں پہاڑ توڑے جا رہے تھے، عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے یہاں کوئی بچی پیدا ہو جاتی اور انہیں یہ بتایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی ہے، تو ان کے چہرے پر نحوست اور بدبختی کی سیاہ پھیل جاتی تھی، پورا گھر جہنم بن جاتا تھا۔ ہمارے شرم و حیا کے گھر سے باہر صرف اس لیے نہیں نکلتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لڑکی کا باپ بن گیا ہے۔ وہ اپنی اس خوددار شرمندگی کو چھپانے کے لیے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ اس لڑکی کو زندہ درغور یا قتل نہ کر دیتے تھے۔ بعض گھرانوں میں سنگدلی کا یہ عالم تھا کہ جب بچے 5 یا 6 سال کی عمر کو پہنچ جاتی تو سنگیدی باپ اس کو اچھے کپڑے پہنا کر خود بستی سے باہر لے کر جاتا، جہاں پہلے سے گہرا گڈھا کھود آتا تھا، اس گڈھے کے کنارے اس لڑکی کو کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا دے کر اسے گرا دیتا۔ وہ لڑکی چیختی اور چلاتی باپ سے مدد طلب کرتی، لیکن وہ ظالم باپ اوپر سے ڈھیلے مار مار کر مٹی ڈال کر اور اسے دبا دیتا اور زمین ہموار کر کے چلا آتا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، انہیں اس حال پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا ہے یا اسے قتل کر دیا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، انسانیت کی تاریخ میں اس سے بڑھ کر سفار درندگی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے بدن سے پیدا ہونے والی، اپنے ایک وقت سے جنم لینے والی لخت جگر کو برا سمجھا جائے، اسے معاشرے میں شرمندگی اور ندامت کا سبب سمجھا جائے، اور اس بات میں شرمندگی اور ندامت کا محسوس نہ کی جائے کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھود کر اسے دفن کر دیا جائے۔ تعجب ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا غور کرو کہ ایک درندہ صرف طباق جب اس طرح سے اپنی معصوم بچے کو دفن کرتا رہا ہوگا، اس وقت کیا درود و عالم ہوتا ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے گود میں ایک معصوم بچے کو لے کر روتے ہوئے تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ گزر چکا ہے،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में नहीं आए थे तो मैं बेटियों को साथ जुल्म करता था, और आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो आज भतीजी भी प्यारी लग रही है। मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे अब्बा से भी ज्यादा मुझ पर शफीक हैं। मेरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब आपकी बरकतें हैं। या आप उनको औरतें कहेंगे जो औरतें को नाम पर बहुत बड़ा इंसान है? क्या औरतें हैं जिनके जिस्म औरिया है, जिनके चेहरे आया और जिनकी आवाज फितनाए जहां है? क्या वो औरतें हैं जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ ठगना, नाचना और मर्दों के दिल को लुभाना? क्या वो औरतें जिन्हें अपने बच्चे की तरबियत की और घरेलू फ्राइज की कोई फिक्र नहीं? क्या वो औरतें जो अपनी चमड़ी बेच कर दमड़ी कमाती है? हकीकत में वो औरतें नहीं बल्कि शर्म और हया के जनाजे हैं। वो औरतें नहीं, वो औरतें नहीं बल्कि चेहरे के बदनुमा निशान दाग है। वो औरतें नहीं, रूह से खाली लाशें ही हैं। इसी तरह जो मर्द औरतों को बेहयाई में रुखसाते हैं, हकीकत में वो इंसान नहीं बल्कि वो वहशी और शैतान परस्त दरिंदे हैं। इंसान नहीं, इंसानियत के माथे का बदनुमा दाग है। इंसान नहीं, इंसानियत के सौदागर है। इंसान नहीं, कैंसर के सड़े हुए फोड़े हैं। इंसान नहीं, बशर्ते इंसान हैवान है। इंसान नहीं, सोसाइटी का फैसला है। इंसान नहीं, बेहयाई के बेघर है। वो इंसान नहीं जो औरतों को हमल में, वो इंसान नहीं जो औरतों को पेट में हमल उठाए हुए दफ्तरों और फैक्ट्रियों में मारी फिरने पर मजबूर करते हैं। उसे वो सुकून मुयसर नहीं होता जो औरतों को हमल की हालत में सुकून मुयसर आना जरूरी है। बल्कि उससे औरत पर जुल्म नहीं होता बल्कि उससे बच्चों पर भी जुल्म होता है। अल्लाह ताला हम सबको हक बात समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़र को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ए मेरी बहनों, ए आस अपना हमेशा दामन सजा के रखना। नज़र को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ए मेरी बहनों, ए आस अपना हमेशा दामन सजा के रखना। कदम कदम पर खड़े रेज़न, तुम्हारा ईमान लूटने को। कदम कदम पर खड़े रेज़न, तुम्हारा ईमान लूटने को। है कीमतें दिल ये दौलत, है कीमतें दिल की दौलत। खुदा इसको बचा के रखना। नज़र को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ए मेरी बहनों, ए आस अपना हमेशा दामन सजा के रखना। कौन लगा दे न जाने दिल में कुफ्र बात के भूल कर भी मेरी बहनों। न जाने दिल में कुफ्र बात के भूल कर भी मेरी बहनों। बहक न जाए कदम तुम्हारा, बहक न जाए कदम
बड़े से पाला तुमको तुम्हारे माँ बाप ने यकीनन, बड़े से पाला तुमको तुम्हारे माँ बाप ने यकीनन, तुमकी हर एक आरज़ू को, तुमकी हर एक आरज़ू को गुलाब जैसे खिला के रखना, नजर को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ऐ मेरी बहनों है आस अपना हमेशा दामन सजा के रखना, तुम्हारे शागुर फातिमा हो, तुम्हारी रग रग में खो है उनका, तुम्हारे शागुर फातिमा हो, तुम्हारी रग रग में खो है उनका, साहबिया से तुम्हारा रिश्ता, साहबिया से तुम्हारा रिश्ता, ज़माना कोई बता के रखना, नजर को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ऐ मेरी बहनों है आस अपना हमेशा दामन सजा के रखना, तुम्हारी इज़्ज़त आबरू की नहीं है कोई जान की, तुम्हारी इज़्ज़त आबरू की नहीं है कोई जान की, ईमान को खुशबू को अपनी सी, ईमान को खुशबू को अपनी सी, बदन में हर पल बसा के रखना, नजर को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ऐ मेरी बहनों है आस अपना हमेशा दामन सजा के रखना, मिलेगी दोनों जहाँ की तुमको शरीफ चलने में कामयाबी, मिलेगी दोनों जहाँ की तुमको शरीफ चलने में कामयाबी, तुम्हें नासिम के नसीहत, तुम्हें नासिम के नसीहत, तुम उसको मकसद बना के रखना, नजर को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ऐ मेरी बहनों है आस अपना हमेशा दामन सजा के रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। रब्बे कायनात का अज़ीम एहसान करम हुआ कि मालिकी तो जहां ने हम सबको पुरनूर और बाबरकत इजलास में बैठने की तौफीक दी। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूलियत से नवाजे, आमीन। इस मुतबरिक महफिल में मुझे जहेज और हमारा मुआशरे पर खिताब करने का मौका मिला है। मैं इसे चंद मिनट ऐसे अनवान पर गुफ्तगू करूंगी। उम्मीद है संजीदगी को माहौल को बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह। सदर मोहतरम और हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नबी के थाम लो दामन सवर जाओ मुसलमानों, नबी के थाम लो दामन सवर जाओ मुसलमानों। आवाज फट रही है तो आवाज को अच्छा कीजिए, नहीं आवाज दे रहा सर। बुराई के पहाड़ों से उतर जाओ मुसलमानों, मुसल्लत हो गए हैं तुम पे जालिम हुक्मरां सारे, खुदा नाराज है तुमसे उतर जाओ मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ा सलामुन अला
होगा। पापा जी के इस्लाम के पास वालों, आज हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से हमारा ज़हन एक ऐसा नासुर बन गया है जो इतनी हथियार से भी ज्यादा खतरनाक मुहलिक साबित होता जा रहा है। उस मलून जहेज की बुनियाद पर रोजमर्रा अफराद की रौनक बनकर यह सुर्खियां छपती है कि फलां शोहर ने अपने ससुराल वाले से स्कूटरी न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया। फलां शख्स ने जहेज का मुतालबा पूरा न करने पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अज़म माजरा है हजरात देखिए, अज़म माजरा है हजरात देखिए, दमाद मांगता है खैरात देखिए। प्यारे दोस्तों, अफराद की असुख्या भी गैर कौमी के बारे में नजराती थी, मगर अफसोस सदा अफसोस कि रफ्ता रफ्ता इस्लामी माशरे के अंदर भी ये बात फैल चुकी है। आज अफराद के अंदर दहेज के लिए भेंट चढ़ने वाली कई फातिमा के हिजाब शबनम फरजाना इस्लाम शरीफ के नाम लिए से कह रही है, काश हमारा इस्लाम शरीफ किताबों के वज़ीए बजाय अमल में आ जाती। मुहतरम हज़रात, आज भी मासूम नौजवानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ज़बर और तशद्दुद के खतार झाड़ियाँ इनकी राह में हायल है। आज भी इन औरतों का अरमान का खून किया जा रहा है। गरीब घरानों को बच्चियों पर खुदा की जमीन अपने औसात और खुशदगी के बावजूद तंग हो रही है। ये सारी दुनिया पर ये बात रोज़े रोशन की तरह है कि वालिदैन उस गुलाब को फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करते हैं तो जहेज उनके मुतालबात को वही मुस्मरा कर देते हैं। अरे जहेज के ठिकारों, कान खोल कर सुन लो, जरा देखो सैयदुल अंबिया ताजदार मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के एकदम मसनून किस अंदाज से होता है कि जिस पर जो चादर है उसमें 16 फंदे लगे हुए हैं और बिन्ते रसूल होने के बावजूद भी पैदप्पा शेर खुदा हैदरी का रसूलुल्लाह के घर की जानिब रवाना हो रही है। और जहेज में एक बिस्तर, एक चक्की, एक तकिया, दो मक्के पर मुश्तमिल मुख्तसर सामान अली मुर्तजा को पेश किया जा रहा है। आज हम ये कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब रहता है, इसलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो, जरा देखो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे। अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे। अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली खलीफा रसूल थे। अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली अब्दुल्लाह थे। हजरत आया मुसल्लिल कर इस बात को अहद करेंगे, मालूम रस्म को मिटा कर दम लेंगे। ये सबके गरा जो हायल है, ये सबके गरा जो हायल है, रस्ते से उठा कर दम लेंगे। हम फूल भी है, तलवार भी है, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। वमा इलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व क़ाल तआला लहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। लायके सदर एहतराम सदर हाजरीन जलसा, तालिबात उलूम इस्लामिया और खातिन इस्लाम, आज इस मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान है औरतों और बच्चों को हुकूक मेरी इस्लामी बहनों। अस्सलामु अलैकुम। हुकूक दो किस्म की होती है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। अल्लाह ताला अपने हुकूक को माफ कर सकती है, लेकिन बंदों के एक दूसरे पर जो हुकूक है उनकी अदायगी जरूरी है। इसीलिए हुकूकुल इबाद से बहुत डरने की जरूरत है। कभी भी इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। कोई बड़ा हो या छोटा, हर एक का दूसरे पर हक होता है। बाप की बेटे पर और बेटे के बाप पर हुकूक होते हैं, शोहर का बीवी पर और बीवी के शोहर पर हुकूक होते हैं। हर एक वक्त में जवाब देना होगा। इस वक्त मुझे बच्चे और औरतों को हुकूक से मुतालिक चंद बातें अर्ज करनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ। और औरतों को हुकूक से अदायगी नहीं, बल्कि हुकूक से बढ़कर हुस्न सुलूक और इखलाकी का मामला पेश करो और उसी से आपस में मोहब्बत पैदा होगी और सही तौर पर आज़ादी जिंदगी बसर करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फर्जिंद का बाप पर एक हक होता है और बाप की फर्जिंद पर एक हक होता है। बाप की हक यह है कि बेटा हर मसला में उसी की इताअत करे, मगर अल्लाह की वसीयत में उसी की इताअत नहीं है। फर्जिंद का हक बाप पर यह है कि उसका अच्छा सा नाम तजवीज़ करे और उससे बेहतरीन अदब सिखाए और कुरान मजीद के तालीम दे। इस्लाम घर में रहने
करते हैं, जहाँ उन्हें दीनी इल्म तो मिलता है लेकिन अमल और अदब इंसानी से महरूम रहते हैं। वालिदैन कुरानी तालीम के बजाय उन्हें फिल्में देखना पसंद करते हैं, जो उनका फसाद का सबब बन जाता है और कल वो मुशारे में बड़े होकर दूसरों के लिए वबाल जान बन जाते हैं और वालिदैन को अपनी हाल पे छोड़ देते हैं। मैं अपने तकरीर को एक शायर के साथ खत्म करना चाहूंगी। बताओ क्या तुझे हम नशी किससे मोहब्बत है, बताओ क्या तुझे हम नशी किससे मोहब्बत है, मैं जिस दुनिया में रहती हूँ वह उस दुनिया की औरत है। अल्लाह ताला हमें औलाद की इस्लामी तालीम और तरबियत के तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। उमा अलैना इल्लल वला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा की अज़मतें क्या है, मुहम्मद मुस्तफा जाने, मकामे मुस्तफा क्या है, मकामे मुस्तफा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मुहम्मद मुस्तफा जाने, मकामे मुस्तफा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने। सदा करना मेरे बस में थी तो मैंने सदा कर दी, सदा करना मेरे बस में थी तो मैंने सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूंगी, वो क्या देंगे मैं क्या लूंगी, सखी जाने वदा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मुहम्मद मुस्तफा जाने। कहा जिब्रील ने सितरा तरक मेरी निसाई थी, कहा जिब्रील ने सितरा तरक मेरी निसाई थी। है कितनी मंजिलें आगे, है कितनी मंजिलें आगे, नबी जाने खुदा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मुहम्मद मुस्तफा जाने, मकामे मुस्तफा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने। मेरी मिट्टी बदी है पाक के नमूने पहुँचा देना, कहाँ ले जाएगी इसको, कहाँ ले जाएगी इसको, मदीने की हवा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मुहम्मद मुस्तफा जाने, मकामे मुस्तफा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا باتیں بہن اتنے دنوں کے بعد نظر آ رہی ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بتاؤں بہن، میں باہر میں گئی تھی پڑھنے کے لیے، تم بتاؤ کہاں پڑھتی ہو؟ میں مدرسہ میں رہ کر پڑھتی ہوں۔ تمہارے مدرسے کا کیا نام ہے؟ میرے مدرسہ کا نام آسیہ تحفیظ القرآن للبنات ہے۔ میں تم سے سوال کر سکتی ہوں؟ بے شک، کیوں نہیں۔ تو یہ بتاؤ، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا کیا نام تھا؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمینہ تھا۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے نام بتاؤ؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کا نام ابراہیم، قاسم، طاہر، عبداللہ اور بیٹیوں کا نام رقیہ، زینب، کلثوم اور فاطمہ۔ تم نے سوالوں کے جواب دے دیے۔ اچھا بہن، کیا میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں؟ بے شک، کیوں نہیں۔ اچھا بہن، تو یہ بتائیے کہ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ پارے 30 ہے۔ قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ قرآن میں حروف 23,22,600 ہے۔ سورہ ابراہیم کون سی پارے میں ہے؟ سورہ ابراہیم 13واں پارے میں ہے۔ قرآن کی موضوع کیا ہے؟ قرآن کی موضوع ہے انسان کی بھلائی۔ قرآن میں کتنے پیش ہیں؟ قرآن میں پیش 8,854 ہے۔ قرآن میں کتنی زیر ہیں؟ قرآن میں زیر 39,582 ہے۔ قرآن میں کتنے نقطے ہیں؟ قرآن میں نقطے 1,05,684 ہے۔ قرآن میں سب سے بڑی سورت کا کیا نام ہے؟ قرآن میں سب سے بڑی سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اچھا بہن، آپ نے تو ساری سوالوں کی جواب دے دی۔ اب میں چلتی ہوں، پھر کسی دن ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے پیاری بہن، پھر کسی دن ملیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولوا للناس حسنا، لائق صدر احترام صدر حاضرین جلسہ، طالبات علوم اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کی اس پرنور مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے چغل خوری اور غیبت۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جن بری عادتوں کا تعلق زبان سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سنگین جرم اور گناہ عظیم قرار دیا ہے اور جن سے بچنے اور پرہیز کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین تاکید فرمائی ہے، ان میں سے ایک چغل خوری بھی ہے، یعنی کسی کی ایسی بات دوسرے کے پاس پہنچانا جو اس شخص کی طرف سے اس دوسرے آدمی کو بدگمان کر کے باہمی تعلقات کو خراب کر دے۔ اسی بری عادتوں کا نام چغل خوری ہے، جو کہ آپس کے تعلقات کو خراب کر کے بغض عداوت اور مخالفت و منافرت پیدا کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ بدترین درجہ کی معاشیت ہوگی۔ چغل خوری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سخت ترین گناہ قرار دیا ہے اور آخرت میں سامنے آنے والے اس کے برے انجاموں سے پوری طرح ڈرایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا يدخل الجنۃ فتاۃ، چغل خوری آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ غیبت، چغل خوری اور بدگمانیوں سب گندے اور صاف ہیں۔ معاشرے میں لوگوں کی نگاہوں سے گرا دینے والے حدیث کے تعلقات میں آتا ہے کہ تم اپنے بھائیوں بہن کی ان باتوں کا ذکر نہ کرو جن کو ناپسند کرتا ہو۔ آج کل لوگوں میں یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے کہ معمولی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت اور چغل خوری کرنے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ عوام تو عوام، خواص میں ان میں برابر کی شریک ہے۔ کم ہی ایسی مجلس ہوتی ہے جہاں غیبت چغل خوری نہ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت اور چغل خوری نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ صرف تم لوگ اس کو پسند کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا سوا اللہ تعالیٰ توبہ قبول
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम यहसुदून अन्नास अला मा अताहुमुल्लाह मिन फज़लिही। लायके सदर एहतराम सदर हाज़िरीन जलसा तालिबात उलूम इस्लामिया और ख़वातीन इस्लाम, आज की इस मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान है हसद की हकीकत। मेरे इस्लामी बहनों, हसद एक खतरनाक और मुहलिक मर्ज है। जिस आदमी को लग जाए उसे तबाह व बर्बाद हो जाता है। हसद करने वाले की सेहत मुतासिर होती है, उसकी माशियात भी मुतासिर होती है, वह दिल ही दिल में घूरता रहता है, किसी वक्त उसे चैन व सुकून नहीं आता, वह हर वक्त महमूद की तबाही और बर्बादी का फिक्र में लगा रहता है, मगर उसको तो कुछ होता नहीं, बल्कि अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत देता है, जिसे चाहे मालदार बनाता है, जिसे चाहे फकीर व मोहताज कर देता है। दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं और बसते हैं, और इन्हीं तमाम लोगों से मिलजुल कर यह दुनिया आबाद होती है। यह मुमकिन ही नहीं कि दुनिया में सब एक ही तरह के लोग हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो दुनिया का निजाम पड़ जाएगा। इसीलिए अल्लाह की माशियत पर राजी रहना चाहिए और किसी की माल व दौलत या इल्म पर हसद नहीं करना चाहिए। हसद की हकीकत यह है, एक शख्स ने दूसरे को देखा कि उसको कोई नेमत मिली हुई है, वो नेमत चाहे दिन की हो या दुनिया की, उस नेमत को देखकर उसके दिल में जलन और कुड़न पैदा हुई। ये नेमत उसको क्यों मिली, ये नेमत उससे छीन जाए तो अच्छा है। यही हसद की हकीकत है। मसलन अल्लाह ताला ने किसी बंदे को इल्म दिया, अब दूसरे शख्स के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ, ये नेमत उसको क्यों मिली, ये नेमत उससे छीन जाए तो बेहतर है, और उसके खिलाफ कोई बात आती तो खुश होता, और अगर उसकी तरक्की सामने आती तो उससे दिल में रंजा और अफसोस होता कि वो क्यों आगे बढ़ गया। इसी का नाम हसद है। हसद करने वाला दर हकीकत अल्लाह ताला की तकदीर पर एतराज कर रहा है कि अल्लाह ताला ने ये नेमत उसको क्यों अता कर दी, और साथ ही साथ ये ख्वाहिश कर रहा है कि किसी तरह ये नेमत उससे छीन जाए। इसी वजह से उसकी संगीनी और खतरनाकी बहुत ज्यादा है। हसद के मुज़र असरात और नुकसानात को देखते हुए और कुरान और हदीस और हुक्माए उलमाए अक़वाल में हसद की मज़म्मीत जा बजा बयान की गई है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, अम यहसुदून अन्नास अला मा अताहुमुल्लाह मिन फ़ज़लिही। क्या दूसरों से उससे हसद करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने फज़ल से नवाजा। यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उससे हसद करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी नस्ल से थे, बनी इस्राइल से न थे। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, नानुन नासु दानुन नासी, यानी इस आयत में हम ही लोग मुराद है, कोई और नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद याकुमुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबू ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। मोहतरमा सदर साहिबा, तालिबात अजीज़ा और ख़वातीन इस्लाम, आज की इस बाबरकत मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान है फ़ाहिशा और बेशरम औरत को जहन्नम की वईद। मेरी प्यारी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसानी माशरे को तबाह बर्बाद करने वाले सबसे खतरनाक चीज बेहयाई है, जिसकी इब्तिदा बेपर्दगी सी होती है और इंतहा ज़नाकारी पर। इसलिए इब्तिदाई में कंट्रोल जरूरी है। इंसान जब तक किसी शय को देखता नहीं, उस वक्त तक उससे बात करने का शौक पैदा नहीं होता, या उसका उल्टा जब तक बात नहीं होती उस वक्त तक उसे देखने का ज्यादा शौक नहीं होता। इसलिए देखने और बात करने से ही मुकम्मल तौर पर हिफाजत करे, और इसके लिए सबसे बेहतर शिकल यही है मर्द अजनबी औरत से दूर रहे और तजनबी मर्दों से दूर रहे और मुकम्मल तौर पर पर्दे का
तमाम हरे करे। इसके बगैर गुनाहों से बचना बजाय नामुमकिन है। इंसान के एजाज जिस्मानी से भी कहीं ना कहीं ज़नाकारी का सुदूर हो जाता है। आंखें जना करती है और उनकी जानकारी अजनबी औरत को नजर पर देख लेना है, यह हाथ भी जना करते हैं और उनकी जानकारी अजनबी औरत को छू लेना है, यह कदम भी जना करते हैं और उनकी जानकारी कोठों की तरह जाना है, जुबान भी जना करते हैं और उनकी जानकारी फौश बातें बोल देना है। इस तरह दिल में भी जानकारी का सुदूर हो जाता है, क्योंकि ये सोते तजुर करते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यूम लिखते हैं कि तमाम आफत नजरबाजी से पैदा होती है। बसा औकात नजरबाजी इस तरह दिल में चुभ जाती है जिस तरह तीर गोश्त में, फिर ये नजरबाजी आदमी के लिए वबाले जान बन जाती है। सुनील तिरमिज़ी की रवायत है कि आपने फरमाया, गैरों के सामने दिलरुबा अंदाज में चलने वाली औरत की मिसाल ऐसी है जैसे कि आमद के रोज तारकी उसमें शर है। इस तरह हदीस में उन तमाम गायब पर सख्त तनकीद की गई है जो दिल का शदाब वाली मर्दों की अपनी तरफ माइल करने वाली है। आपका इरशाद है, जो औरत बन सुरार का खुशबू लगा कर निकले समझो वो जानिया है, तुम्हें जीना नहीं बल्कि फाहिशा और बेशर्म औरत को जहन्नम की वही सुनाई गई। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो किस्म के लोग बिल जरूर जहन्नम में दाखिल होंगे, एक जालिम हुक्म, दूसरों को औरत जो भारी कपड़ा दिखाने वाली, दूसरों को अपनी तरह मुतवज्जा करने वाली और खुद दूसरे को सुपुर्द होने वाली। इसी तरह औरत कभी जन्नत में दाखिल ना होगी, ना ही जन्नत की खुशबू पा सकेगी। अल्लाह ताला हम सबको नजरबाज से महफूज बनाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम मास्टर साहब। और कहिए आजकल कैसे गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि खैर व आफियत से हूँ। काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई, क्या कहीं चले गए थे? दरअसल बात यह है कि मैं दिल्ली चला गया था और आना जाना भी कम हो गया था, इसीलिए मुलाकात नहीं हो पा रही थी। खैर अब मैं यही शहर में मुंतकिल हो गया हूँ। अब इंशाअल्लाह बराबर मुलाकात होती रहेगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपके कितने लड़के हैं और क्या क्या करते हैं? मेरे 6 लड़के हैं, उनमें से 4 लड़के आला तालीम में कामयाबी हासिल करके अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं, जिनमें से एक लड़का बैंक मैनेजर है, दूसरा डॉक्टर है, तीसरा वकील है और चौथा ताजिर है। मालूम हुआ है कि आप अपने लड़कों की शादी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं एक साथ अपने 3 लड़कों की शादी कर रहा हूँ ताकि इस अहम फर्ज को अदा करके मेरे सर का बोझ कुछ कम हो। सुना है कि आजकल लड़कों की शादी में लड़की वालों से दहेज का खुल्ला मुतालबा किया जाता है। आपका कहना बिल्कुल सही है। हमने भी लड़की वालों से मोटरसाइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर वगैरह दीगर का सामान मुतालबा किया है। आप मालदार होने के बावजूद भी दहेज तलब कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को बहुत मेहनत से रुपये खर्च करके पढ़ाया है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पैदल चल के नौकरी के लिए जाएं। मैंने इसलिए जहेज का मुतालबा किया है ताकि मेरे बच्चे राहत चैन में सुकून के साथ जिंदगी बसर करें। ला हौला ला कुव्वता। आप जैसे मुअज़्ज़िज़ व मुक़र्रिर आपने किसी के सामने 10 सवाल दराज करना हैरत की बात है, जबकि जहेज जैसी लानत कुरान और हदीस की रूस में नजायज अमर इखलाकी एतबार से कतवी और सन्नी चीजें हैं। तो क्या जहेज के मुतालबा में किसी तरह की कोई कबाहत है? कि हम तो ये समझ रहे थे कि जो चीज इतनी आम हो कि इसमें कैसी बुराई है, मगर आपके जहन के कुरान में हदीस के खिलाफ होने को साबित करके चौंका दिया है। अगर वाकई जहेज तलब करना कुरान में हदीस के खिलाफ है तो आप मुझे तफसील से बताइए कि जहेज लेने से क्या गुनाह है और जहेज लेने वालों को क्या हासिल होगा? जहेज लेना हराम और नाजायज है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो अल्लाह उसको जिल्लत देगा, और जो माल की लालच में शादी करेगा तो उसको अल्लाह फकीरी और तंग देगा। कारी साहब, जहेज के नाम पर किसी से रुपया पैसा मांगना ऐसा ही है जैसे कि किसी से भीख मांगा जाए। क्या कोई आदमी भीख मांगना पसंद करेगा? अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि जहेज लेने से क्या क्या नुकसान है? जहेज लेने से हजारों का तबाह और बर्बाद हो चुकी है। जब लड़की वालों से जहेज का मुतालबा किया जाता
ثابت ہے یا نہیں؟ نہ تو کبھی کسی صحابی نے جہیز کا مطلب کیا اور نہ ہی کسی تابعی نے، یہ تو بس جاہل نواقف لوگ نے کھڑا کیا ہے۔ جب صحابی رضی اللہ عنہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے تو جہیز کا بھی مطلب مسلمانوں اگر تم ناجائز حرکت سے باز نہ آؤ تو ایک دن آئے گا تمہارا نام بھی ختم ہو اور تم کل قیامت کی روز اللہ اس کو رسول کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ میں تو بڑی گمراہی میں تھا کہ آج تک ایک بڑی کام کو اچھا سمجھ رہا تھا اور اس کا انجام دے رہا تھا۔ یقیناً آپ کی تقریر نے تو دل کا کایا پلٹ دیا ہے اور اب خوف کے مارے میرا دل کانپنے لگا ہے، لہٰذا آج میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ جہیز جیسی لعنت کا مطالبہ میں زندگی بھر میں کبھی نہیں کروں گا اور اپنے سبھی بچوں کی نکاح انتہائی سادگی اور سنت کے مطابق سے کروں گا اور اس کی بھی کوشش کروں گا کہ دنیا سے یہ لعنت ختم ہو جائے۔ اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو انتہائی سادگی و سنت کے مطابق سے نکاح کرنے کی نصیب عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتی۔ علم بہت بڑی دولت ہے، یا اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ مزدار بات یہ ہے کہ چور اس عظیم نعمت کو چرا نہیں سکتا، کوئی لٹیرا لوٹ نہیں سکتا، کوئی ڈاکو چھین نہیں سکتا، کوئی اسے مل کر بانٹ نہیں سکتا، یا خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں، جتنا خرچ کرو اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے، یہ ہر ایک انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ کی یہ عظیم نعمت بڑے خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے۔ جس شخص کو یہ عظیم نعمت حاصل ہو جاتا ہے اس کو عقل و شعور، تمیز و تہذیب، ادب و سلیقہ، وقار و سنجیدگی، شرافت و شائستگی، اخلاق و قابلیت، مقبول جیسی عظیم نعمت، بلند مرتبہ خوبیوں حاصل ہو جاتی ہے۔ دنیا میں آخرت کی کامیابی کی راہیں کھل جاتے ہیں۔ علم والے استاذ عزیزان گرامی، علم والوں کو دونوں جہاں کی عزت، دولت، شہرت سب کچھ حاصل ہو جاتی ہے۔ علم سے دل و دماغ روشن ہوتی ہے، عقل تیز ہوتی ہے، دماغ کھلتی ہے، معلومات بڑھتی ہے، طرح طرح کی چیزوں کا پتہ چلتا ہے، بے علم بے خبری ختم ہو جاتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ علم روشنی ہے، جہالت تاریک اور اندھیرا ہے، علم قابل اور کامیابی ہے، جاہل ناکام اور بیکار ہے۔ اسلام نے تعلیم کو اہمیت بتلائی ہے، اس کو حاصل کرنے پر بہت زور دیا ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلک پہ چاند ستارے سب جھک کر احترام کرتی ہوں، فلک پہ چاند ستارے سب جھک کر احترام کرتی ہوں، جیسے میں آئی ہوں مہمانوں کو بادب السلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I see someone holding phone سے تعلق in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Harun Rashid is a very famous king. He had two sons. One was named Amin and the other Mahmud. These are mother of our day. Both were studying with their teacher had been. The teacher had to get up for sons was even the teacher was. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کو قرآن یاسین طٰہٰ کرے، ان پہ
चांद से खूबसूरत रुख है मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। चांद से खूबसूरत रुख है मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। जिनकी सूरत हंसी, जिनकी सीरत हंसी, कोई आया पहले ना आएगा बाप। जिनकी सूरत हंसी, जिनकी सीरत हंसी, कोई आया पहले ना आएगा बाप। उनको बेहद है प्यारा हमारा नबी, उनको बेहद है प्यारा हमारा नबी। उनकी तौहीन करना गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनकी तारीफ खुद रब काबा उनकी अज़मत घटाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। मेरे आसिफ को मकाम है मिला, अर्श से फर्श तक एक शुद्ध में चला। मेरे आसिफ को मकाम है मिला, अर्श से फर्श तक एक शुद्ध में चला। दूर तूफान ने कहा मरहबा मरहबा, दूर तूफान ने कहा मरहबा मरहबा। इसको झूठी बताना गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उनकी अज़मत घटाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। अस्सलामु अलैकुम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My brother and sister
question that we might be asked, why are you a Muslim? Why it is that we use a you have adopted something thought your own feeling and regulation. What you risking something? What you work and you workness, cut it out no matter what is it? Work and you workness, but it inshallah. Thanks.